Okay, Jai Hind everyone. Wish you all a very good morning. I am Sergeant Simran Kaur, NCC cadet of SD College Barnala. With the kind permission of Principal SD College Barnala, we are going to start today's special lecture on Kargil Vijay Divas. The NCC unit of SD College Barnala, affiliated to 20 Punjab Battalion, NCC Bathinda, Group Headquarter Patiala, has organized a special lecture on Kargil Vijay Divas under the theme The Kargil War, Pakistan's Duplicity and India's Response. So, respected Chief Guest Professor Rajesh Gupta, IQAC in charge, Vice Principal Professor Nirmal Gupta, today's key speaker, Honorable Colonel Jaybans Singh, NCC officers, all the teachers, students, NCC cadets, and all the ladies and gentlemen, welcome to all of you in today's special lecture on Kargil Vijay Divas. Our today's chief guest is Professor Rajesh Gupta, IQAC in charge, and the key speaker is Honorable Colonel Jaybans Singh. So talking about our college, the SD College Barnala is a prestigious institute of Malwa Belt which was established in 1956 and with the guidance and leadership of our Honorable Principal Ma'am and worthy management, SD College Barnala is achieving an excellent position in the fields of academics, sports, cultural activities, national service scheme, etc. Talking about our NCC department, under the guidance of NCC in charge, Dr. Manjeet Singh, our NCC department has 2 platoons and the cadets' participation in national camps and annual training camps is praiseworthy. Our college NCC unit is awarded with Swachh Bharat Pakhwada Award 2019 and our college unit got National Welfare Society scheme for this year. Here one more thing I want to add that our Honorable Principal Ma'am Dr. Rama Sharma is also an ex-NCC cadet. Principal Ma'am was also an NCC cadet during their college time. So today we get great opportunity of connecting with such a great personality who served in Indian Army, Colonel retired Jaybans Singh. Colonel Jaybans Singh, a reputed analyst of Indian defense and security affairs, has an abiding interest in issues related to national security, internal security, geopolitical developments, and defense strategies in the context of the nation. His area of specialty compasses Jammu and Kashmir, Pakistan, and China. Colonel Jaybans Singh contributes to a large number of newspapers, defense magazines, news agencies, and websites. He is also the editor-in-chief of Defense Info, a popular web portal for news, defense news, and views. Now, taking no more time, I request Honorable Colonel Jaybans Singh to share their valuable views on lecture on the topic Kargil Vijay Divas. Colonel Jaybans, sir. Thank you, Simranjeet. So kind of you, and it is a great pleasure for me. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Okay. So it's a very great pleasure for me to be speaking in this very vibrant forum of SD College Barnala, and I am very grateful to the principal, Dr. Rama Sharma ji, and the NCC in charge, Manjeet Singh ji, for having given me an opportunity to speak to the students of the college and especially the students of the college. I would also like to add over here that at a time longer than Principal Ma'am, I was also in the NCC, and I attended I did my Part C certificate and also attended the SSB from NCC, even though later on I went through a direct entry through IMA to the Army. So I have a lot of time for NCC and a lot of affection for this organization. I have been associated with it over time, many times. And Acha, Abhi, what language would you prefer, Hindi or English, or a mix? Yes, sir. Mix, sir. Mix, sir. Mix. अच्छा, मैं बेसिकली हिंदी में बोलता हूँ और बीच बीच में इंग्लिश डालूंगा.
ओके सर, थैंक यू। हिंदी मेरी इतनी कोई अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। वैसे तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, पर हिंदी खासकर इतनी कोई अच्छी नहीं है। एनीवे, so without wasting your time, I will get down to this talk on Kargil and what happened in Kargil. जो कारगिल में हुआ था, मेरा ख्याल उस टाइम पर जो हमारी मैक्सिमम ऑडियंस है आज, ये बच्चे तो यू वुड नॉट हैव बीन इवन बोर्न एट दैट टाइम। सो आपने तो सुना ही होगा, 21 साल हो गए हैं आज के दिन को, सिंस दिस मिसएडवेंचर बाय पाकिस्तान भी लेड टू अ वॉर, उसको हुए अभी 21 साल हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बेसिक नॉलेज तो कारगिल के बारे में और J&K के बारे में सबके पास होगी, तो उसको मैं बहुत सारांश में इन अ समराइज्ड मैनर में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। J&K जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, प्रिंसिपैलिटी अंडर द डोगरा डायनेस्टी, जम्वाल डायनेस्टी के नीचे थी एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल। और इसमें जनरल जोरावर सिंह ने सिख रूल के टाइम के ऊपर, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम के ऊपर लद्दाख को भी ज्वाइन कर दिया था इन द सिख एम्पायर। तो जब इस एम्पायर को, इस एरिया को दिया गया ऑन द पेमेंट ऑफ 70 लाख रुपीस टू महाराजा गुलाब सिंह, तो लद्दाख और कारगिल एरिया भी उनके पास आ गया एज पार्ट ऑफ स्टेट। तो ये बहुत बड़ी स्टेट है, ये जम्मू से शुरू होती है और इसके सेंटर में एक रिज है जिसको कहते हैं पीर पंजाल रिज। इनफैक्ट ये 3-4 रिजेस के साथ डिवाइडेड है ये स्टेट। तो काराकोरम रिज है, पीर पंजाल है, हिमालयाज के काफी रिजेस हैं। तो जम्मू से शुरू होके ये पुंछ राजौरी तो साउथ ऑफ द पीर पंजाल है, फिर उसके बाद कश्मीर वैली आती है, फिर जोजिला पास आता है, उसके आगे कारगिल है और फिर लद्दाख है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो स्टेट है, ये इसके महाराजा ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो कि बाकी महाराजाओं ने भी साइन किया था, उसको साइन करके तो जम्मू कश्मीर स्टेट को एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बना दिया था। पर पाकिस्तान इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण कि 1947-1948 में एक बहुत जबरदस्त जंग हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसको 1947 इंडो पाक वॉर ऑफ 1947 कहते हैं, पर वो सिर्फ 1947 नहीं थी, वो 2 साल चली, 2 कैंपेनिंग सीजन्स। क्योंकि वहां एक कैंपेनिंग सीजन जब बर्फ पड़ जाती, कैंपेनिंग सीजन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस जो वॉर में a big portion of the state of जम्मू कश्मीर को इंडिया ने कैप्चर कर लिया था, पर कुछ हिस्सा इसका जो है वो रह गया उनके पास, पाकिस्तान के पास। हमें वो भी कैप्चर कर लेना चाहिए था, हमारे पास क्षमता थी, पर हमने किया नहीं। पर वो क्यों नहीं किया उस बात में हम जाएंगे नहीं। तो जो एरिया अभी पाकिस्तान के पास है, उस एरिया को कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इंडिया उसके ऊपर क्लेम करता है, वेरी राइटफुली सो। और इंडिया ये चाहता है कि वो पूरी जो स्टेट है, जो कि एक्सेशन के टाइम के ऊपर महाराजा हरि सिंह ने हमें दी थी, वो हमारे पास वापस आ जाए। तो उसके लिए क्या है कि जिस पॉइंट के ऊपर ये लड़ाई खत्म हुई थी 1947-48 में, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर लूं, मैं अपना फेस शेयर कर दूं? भाई प्लीज टेल दिस पर्सन टू एंजल जी, या थैंक यू। तो उस टाइम के ऊपर जो ये एरिया था जो पाकिस्तान के पास रह गया था, वो एक लाइन खींची गई थी। वो लाइन कोई एक बॉर्डर नहीं है, तो उस लाइन को पहले बुलाते थे सीज फायर लाइन, बाद में उसको कहना शुरू कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये किसी भी ऐसे जो बॉर्डर्स होते हैं, वो नॉर्मली किसी रिवर के ऊपर या किसी रिज के ऊपर बेस्ड होते हैं, किसी एक प्रोमिनेंट पीसेस पर होते हैं। ये एक सीधी लाइन खींची हुई है और इस लाइन में इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ आईबॉल टू आईबॉल है, मतलब बिल्कुल सामने एक दूसरे को देख सकते हैं। और इस लाइन के ऊपर काफी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आज से कोई 20 साल पहले 2003 में हमने इस लाइन के साथ एक LOC फेंसिंग बना दी थी। तो उसको फेंसिंग के कारण पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन थोड़ी कम हो गई, पर जो कारगिल वाले एरिया हैं वो इतनी ऊंचाई पर हैं कि वहां हम ऐसी कोई फेंसिंग बना नहीं सके।
और बना सकते भी नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टेरेन। तो ये जो झगड़ा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का, ये चल रहा है। आपको सबको पता है पाकिस्तान ने एक पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स को अप्लाई किया था, जिसके साथ कि वो पाकिस्तान ने टेररिज्म हमारे एरिया में करनी शुरू की। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म शुरू हुई थी। 10-20 हजार टेररिस्ट आ गए थे कोई 3 डिकेड पहले, लेट 1980s में। अब उनको इंडियन आर्मी ने और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इकट्ठे मिलके बहुत ही शानदार तरीके से उनको टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया हुआ है। अब तो 300-400 ही रह गए हैं। और साउथ ऑफ द पीर पंजाल एरिया जो पुंछ, राजौरी, जम्मू, किश्तवाड़, डोडा है, वहां तो कोई टेररिस्ट नहीं है। कुछ टेररिस्ट जो हैं वो कश्मीर वैली में हैं। तो ये है। और जो एरिया है, कारगिल का एरिया है, वहां कोई टेररिस्ट नहीं है। उस एरिया में शिया मुस्लिम रहते हैं। शिया मुस्लिम्स, जो कारगिल का एरिया है, शिया मुस्लिम रहते हैं। तो बेसिकली जिनको बिल्कुल नहीं पता उसके बारे में, वो समझ रहे हैं कि जब आप कश्मीर की घाटी से निकलते हो, जोजिला पास को क्रॉस करते हो, तो कारगिल शुरू हो जाता है। वो कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी का, वो लद्दाख लेह है। तो कारगिल का जो डिस्ट्रिक्ट है, ये आप शुरू होता है द्रास से और आगे बढ़ता जाता है। एंड यहाँ पर कोई खास ऐसे कोई प्रॉब्लम तो कभी नहीं थी हुई पहले, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो कारगिल की वॉर है वो एक ट्रेचरी थी, बहुत बड़ी ट्रेचरी थी। तो कैसे थी वो ट्रेचरी? इस तरीके से थी कि उस एरिया में जो हमारे प्रोटोकॉल थे, क्योंकि वो हाइट्स हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब 16,000 17-18 हजार की हाइट्स में पीक्स है, वहां की पथरीली जमीन है। और सर्दियों में वहां 10-10 फुट की बर्फ पड़ती है, -40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। जो द्रास है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। वहां बहुत तेज हवा चलती है द्रास में। तो एक प्रोटोकॉल था हमारा उनके साथ। वहां से लाइन ऑफ कंट्रोल निकलती है, कारगिल के एरिया की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो ये पीक्स जो हैं इनके साथ ही निकलती है। दूसरी तरफ उनके स्काडू है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान है। एंड वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां हमारा एक प्रोटोकॉल था जिसके साथ हमने कहा था कि विंटर्स में वो भी अपने पोस्ट वेकेट करेंगे और हम भी अपने पोस्ट वेकेट करेंगे, ताकि एंड समर्स में जाके हम ऑक्यूपाई करके अपने एरिया को अपने हाथ में लेंगे। ये प्रोटोकॉल चल रहा था। कारगिल वॉर में ये प्रोटोकॉल तोड़ दिया। This protocol was broken by the Pakistan Army under General परवेज मुशर्रफ, जो कि उस टाइम पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और उन्होंने सर्दियों के टाइम के ऊपर वहां अपनी फोर्सेस को इन्फिल्ट्रेट करके हमारी पीक्स के ऊपर कब्जा कर लिया। ऑन अ फ्रंटेज ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर उन्होंने कई पीक्स ले ली थी के सब सेक्टर्स के साथ, जिसकी मैं बाद में आपसे बात करूंगा। तो ये तो एक ट्रेचरी थी कि एक प्रोटोकॉल है, एक जो सिस्टम है, उस सिस्टम को तोड़ दिया। पर ये कोई बड़ी ट्रेचरी नहीं थी, क्योंकि दुश्मन के साथ तो आप कुछ कर दो तो गलत तो करना नहीं चाहिए। फौजी गलत नहीं करते हैं। फौजी सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं, इस तरीके की इन्फिल्ट्रेशन की लड़ाइयां नहीं लड़ते हैं। पर चलो ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमें भी सतर्क रहना चाहिए था। तो उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, एक दुश्मन ने कर दिया, तो कुछ बात है। उससे बड़ी ट्रेचरी जो की थी आपके परवेज मुशर्रफ ने, उसने अपनी कंट्री के साथ की थी। परवेज मुशर्रफ ने इस लड़ाई के बारे में अपने प्राइम मिनिस्टर, जो कि उस टाइम पर नवाज शरीफ थे, उनको बताया ही नहीं। अपनी गवर्नमेंट को नहीं बताया। अपने दो जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, उनको नहीं बताया। उनकी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थी, उसको भी कुछ थोड़ा ही अनुमान था, उसको भी कुछ नहीं था पता। एंड इवन यहाँ तक कि ISI को भी नहीं था पता। ये क्यों नहीं बताया उसने? क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने नवाज शरीफ को बता दिया, नवाज शरीफ इस प्लान को ना कर देगा। उससे पहले एज अ ब्रिगेडियर जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये प्लान बनाया था,
और उस टाइम पर जिया उल हक ने और बेनजीर भुट्टो ने ना कर दिया था। उन्होंने कहा था भी हमारा प्रोटोकॉल है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करेंगे, अगर हमने क्रॉस कर दिया तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा, तो अगर पूरी लड़ाई हो जाएगी तो पता नहीं हमारे देश के साथ या कितना नुकसान हो जाएगा। सो नोबडी वाज रेडी टू डू दिस। ये सिर्फ परवेज मुशर्रफ का ईगो था जिसके कारण उसने किसी को बताने के बगैर, उसके साथ उसके 3 जनरल थे, उनके नाम भी मैं बता देता हूं आपको। लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान जो कि उसका चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद जो कि 10 कोर, जो उस एरिया में कोर है, 10 कोर का जीओसी था, और मेजर जनरल जावेद हसन जो कि वहां के डिवीजन जिसको बुलाते हैं फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया, उसका वो जीओसी था। ये 4 लोगों ने इकट्ठे मिलकर ये खिचड़ी पकाई थी बिना किसी को बताए। ये बहुत बड़ी ट्रेचरी है, ये अपने देश के साथ गद्दारी करना है, इतनी बड़ी गद्दारी जो कि मेरे ख्याल कभी किसी फौजी ने पहले नहीं की होगी, जैसे कि परवेज मुशर्रफ ने अपने लोगों के साथ कर दी। उनसे इजाजत लेने के बगैर उसने इतना बड़ा मिसएडवेंचर कर दिया जिससे कि पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते में जा सकता था। ये तो हमारी कंट्री की मैच्योरिटी है, और हमारे उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी मैच्योरिटी है कि उन्होंने कहा कि हम इसको लोकलाइज वॉर करके सिर्फ अपने एरिया से इनको बाहर निकालेंगे और हम इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर ऐसा सोच लेते हम कि चलो ठीक है उन्होंने वहां ले लिया तो हम पंजाब का कोई एरिया ले लेते हैं या अखनूर का कोई एरिया ले लेते हैं, तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती। वी आर न्यूक्लियर एनेबल्ड नेशंस, तो बहुत ज्यादा बर्बादी हो सकती थी। और इस बर्बादी की तरफ दोनों नेशंस को लेके जाना, ये परवेज मुशर्रफ की ट्रेचरी थी। और इस ट्रेचरी के कारण, इस ट्रेचरी के बाद हुआ क्या, वो वहां से तो हमने उनको निकाल दिया 3 महीने के अंदर, बहुत बड़ा नुकसान देके, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो बहुत बड़ा नुकसान लेके हमने उनको वहां से निकाल दिया, पर परवेज मुशर्रफ जो है वो उसको जेल में डालने की जगह वो कू करके प्रेसिडेंट बन गया, डिक्टेटर बन गया, और 10 साल डिक्टेटर रहा। और ये जो उसके नीचे जो 4 ऑफिसर्स थे उसमें से अजीज खान एक 4 स्टार जनरल बन गया, जैसे चीफ होता है, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी, और महमूद अहमद डीजी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस बन गया, और जावेद हसन जो है वो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बन गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये किस तरीके का मुल्क है ये पाकिस्तान, जहां तुम जो मर्जी कर दो, सिर्फ जोर चलता है वहां, तो आर्मी का ही जोर चलता है। तो इतना बड़ा देश के साथ गद्दारी करने के बाद ये लोग देश के मालिक बन के बैठ गए। ये थी उसकी ट्रेचरी नंबर 1। उसकी ट्रेचरी नंबर 2 ये थी कि उसने वहां पर लड़ने के लिए जो ट्रुप्स चुने, वो सारे ट्रुप्स जो हैं वो गिलगित बाल्टिस्तान के शिया थे। उसको जो यूनिट्स उसने चुनी, उन यूनिट्स का नाम था नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। तो ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो है, ये सारे ट्रुप्स जो हैं वो शिया ट्रुप्स थे, गिलगित बाल्टिस्तान के, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, इनोसेंट लोग थे, हार्डी सोल्जर्स थे। और उसने ना कोई पंजाबी को वहां भेजा, यहाँ तक कि किसी बलूच को भी नहीं भेजा, किसी पठान को भी नहीं भेजा, उन्हीं के साथ अफसर बना के, नोइंग फुली वेल कि ये एक इतना बड़ा मिसएडवेंचर है कि यहाँ से बच के आना तो मुश्किल है। उसने अपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रूप्स को मौत की तरफ धकेल दिया, शोर डेथ, कैनन फॉडर बना के वहां भेज दिया। और प्रेपरेशन भी इतनी कोई खास ज्यादा नहीं थी की। तो प्रेपरेशन क्या थी, वो जाते हुए मैंने एक डायरी पढ़ी है वहां के एक कैप्टन साहब की, जो कि अपने ट्रुप्स को लेके जा रहा है। आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इतनी हाइट्स हैं वहां, 10-10 फुट। जब उसने शुरू किया है, when he started this thing, तब जनवरी थी, जनवरी फरवरी में उन्होंने अपनी इन्फिल्ट्रेशन शुरू की थी, इंट्रूजन शुरू की थी। उस टाइम के ऊपर वहां 10-10 फुट की स्नो होगी, एक कदम भी लेना मुश्किल होता है। आप ये समझिए कि जहां विक्रम बत्रा ने वीर गति पाई थी 0.4875 पर, और जिस ऑपरेशन में उसने वो वीर गति पाई है, उसमें 150 गज का फर्क था सिर्फ, 150 to 200 यार्ड्स। वो जो 150 गज है,
वो 150 गज ये लोग नहीं थे चल सकते, उस 150 गज से वहां पर विक्ट्री और डिफीट का फर्क पड़ सकता था, सिर्फ 150 गज। और उस 150 गज में विक्रम बत्रा ने चार्ज करके वहां उन लोगों को मार के, अगर वो चार्ज ना करता तो वो 150 गज भी लेना मुश्किल था। तो मतलब उस जगह में 1 किलोमीटर तो बहुत बड़ी है। इट इज अ वेरी बिग थिंग टू वॉक 1 किलोमीटर ओवर देयर। तो ऐसी जगह के ऊपर उसने उनको इतनी ठंड में पूरी तरह से राशन नहीं दिया, अच्छी क्लोथिंग नहीं दी और उनको वहां भेज दिया। और वो कैप्टन साहब कहते हैं कि अपनी डायरी में लिखते हैं, कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद हमारे को राशन, वहां इतनी ब्लिजर्ड चल रही थी, इतनी ठंड थी, पानी नहीं था, हम प्यासे रह जाते थे। फिर उन्होंने स्नो को गर्म करके पानी पीना शुरू कर दिया। और जाते हुए ही उसकी जो पार्टी थी उससे 11 बंदे तो वहां पहुंचने से पहले मर चुके थे। सो ये थी मुशर्रफ की प्लानिंग। और स्ट्रेटेजिकली जो मुशर्रफ सोचता था कि मैं, वो बहुत बड़े उनके एम थे कि मैं वहां से क्या है कि अपना लेह लद्दाख की सड़क को डोमिनेट कर लूंगा और सियाचिन को आइसोलेट कर दूंगा, वहां से हम एक रूट खोल लेंगे इन्फिल्ट्रेशन की। और इंडिया का जो रिस्पांस था, उसको लगता था कि इंडिया का बड़ा वीक रिस्पांस होगा, जब तक इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा तब तक विंटर्स आ जाएंगे तो वो हमें निकाल नहीं सकेंगे। ये सारे कंजेक्चर थे। कोई भी अक्लमंद फौजी इस तरीके के काम नहीं करता। और इससे उल्टा हुआ, उसने सोचा था कि इंडिया का रिस्पांस बहुत कमजोर होगा। इंडिया का तो इतना जबरदस्त और इतना फास्ट रिस्पांस था, कोई कहने की बात नहीं है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम पर ही कह दिया था कि अब हम दिखाएंगे इनको कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं और एक भी इंच हमारी जमीन इनके पास नहीं रहेगी। उसके बाद फिर ये 3 मई के बाद ये लड़ाई शुरू हो गई थी और 3 महीने के अंदर अंदर हमने उनके सारे जो 4 बटालियन आई हुई थी 150 किलोमीटर के एरिया के ऊपर, 5-6 पीक्स के ऊपर, बड़ी बड़ी पीक्स पर बैठी थी, वो सारी हमने क्लियर कर दी। तो उसका ये कंजेक्चर ही गलत था कि इंडिया जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंडिया को करने नहीं देगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी इंडिया के साथ थी। उन्होंने कहा तुमने जो करना है करो, हम इसके बीच में आएंगे ही नहीं। तो आखिर में जाके क्या हुआ कि नवाज शरीफ एक बेगर के जैसे, उसने नवाज शरीफ को उठाया और भेज दिया वहां मिलने के लिए यूएस प्रेसिडेंट को। और यूएस प्रेसिडेंट ने एक सीज फायर ब्रोकर कराई। और उस सीज फायर से तो मतलब वो सीज फायर जब हुई तब तक वहां कुछ सीज फायर वाली कोई बात ही नहीं थी, वो पूरे खत्म हो चुके थे। और पाकिस्तान ने अपनी डेड बॉडीज को भी वापस लेने से इनकार कर दिया। ये हमारे इंडियंस हैं जिन्होंने जिन जिन लोगों को उन्होंने इनकार किया था, उनकी बड़े रिस्पेक्ट से उनके लास्ट राइट्स, उनके रिलीजन के मुताबिक उनके लास्ट राइट्स करके उनको क्रिमेट किया। ये इंडियंस ने किया। पाकिस्तान ने तो कह दिया ये हमारे आदमी नहीं है तो हम तो इनको लेंगे नहीं। तो ये सारा कुछ मुशर्रफ ने क्यों किया? मुशर्रफ ने एक सिर्फ उसका ईगो था, एक ईगो के ऊपर उसने बेस किया कि मैं एक मुहाजिर हूँ, एक मुहाजिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना हूँ, मैं दुनिया को बताऊंगा दैट आई एम बेटर देन द पंजाबी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये बहुत गलत हुआ। अभी मैं आपको ऑपरेशन के बारे में कुछ बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो हाइट्स कितनी ज्यादा थी, 18,000 फुट की हाइट्स थी। इतने हम तैयार भी नहीं थे, एक्लेमेटाइज नहीं थे। उस एरिया में अगर लड़ाई लड़नी होती है तो 14-20 दिन की, 25 दिन की एक्लेमेटाइजेशन होती है। आपको अपना सांस लेने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। तो एक्लेमेटाइजेशन की तो कोई टाइम ही नहीं था। तो वहां एक ब्रिगेड लगा हुआ था, उस ब्रिगेड को हमने एक डिवीजन स्ट्रेंथ के साथ किया, क्या कहते हैं उसको, ब्रिगेड को हमने स्ट्रेंथन किया एक डिवीजन के साथ और सब सेक्टर्स बना दिए उस एरिया में। बेसिकली जो वहां के जो सब सेक्टर थे वो मशको, द्रास, काक्सर, बटालिक और यालदार थे। इन सब सेक्टर्स में और सब सेक्टर्स में हमने डिवाइड करके अपने ट्रुप्स को भेजा वहां, इन्फेंट्री बटालियंस को। और काफी हमने वहां पर एरियल बम्बार्डमेंट की उनके ऊपर। हमारे एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। और सबसे ज्यादा काम वहां आई बोफोर्स।
बोफोर गन जितनी हमारे पास, काफी सारे हमने बोफोर की रेजिमेंट्स को वहां शिफ्ट किया एकदम। within no time we shifted the Bofors units over there. और मेरा एक जो मित्र है जो कि वहां उस टाइम पर कमांड कर रहा था बोफोर यूनिट को, उसने मेरे को बताया कि उसी की अकेली यूनिट ने 18,000 राउंड फायर किए थे वहां, 18,000 राउंड उसकी यूनिट ने। तो अगर वहां 3-4 यूनिट से, तो आप अंदाजा लगा लो कि हमने कितना फायर किया। पर अल्टीमेटली जो लड़ाई है वो की इन्फेंट्री ने। और इन्फेंट्री आपको जान के मतलब ये है हमारे हिंदुस्तान की काबिलियत कि मैं आपको यूनिट्स बताता हूँ वहां इन्फेंट्री की कैसी कैसी यूनिट्स थी, पूरा नाम नहीं लूंगा। आपको पता है कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो एरिया के साथ मिली हुई हैं। तो वहां एक जाट रेजिमेंट थी, ग्रेनेडियर रेजिमेंट मिक्स होती है, जाट रेजिमेंट थी हरियाणा से, गढ़वाल रेजिमेंट थी उत्तराखंड से, बिहार रेजिमेंट थी, 2 सिख रेजिमेंट थी, एक पंजाब रेजिमेंट थी, गोरखा रेजिमेंट थी, जम्मू कश्मीर राइफल्स थी जो कि जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री थी जो कि कश्मीर के लोग उसमें आते हैं और लद्दाख के लोग होते हैं। इसके अलावा नागा यूनिट थी, लद्दाख स्काउट्स थे। तो मतलब पूरे हिंदुस्तान से सोल्जर्स वहां गए थे लड़ने के लिए। और ऐसे मतलब जिस तरीके से वो सोल्जर्स लड़े हैं, वो इतना करेज और इतना हौसला, इसका कोई मिसाल नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन टू दिस इन द एनल्स ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री। और इसी वजह से वहां पर 4 हमारे को परमवीर चक्र मिले और 11 महावीर चक्र थे, बहुत सारे वीर चक्र एंड सेना मेडल भी मिले। 537 हमारे वीर जवान जो है वो वीर गति पा गए और 1000 से ऊपर हमारे जवान जो हैं उनको देवर इंजर्ड। पर उन्होंने वहां पर इनको अपने दुश्मन को टिकने नहीं दिया और बिना ज्यादा प्रेपरेशन के, बिना एक्लेमेटाइजेशन के वो टूट पड़े उनके ऊपर और एक एक इंच लड़के उन्होंने लिया कारगिल में। ये आप अंदाजा लगाइए कि वहां एक एक इंच के लिए लड़ाई हुई है। कई बार 150-150 गज के ऊपर वो 4-4 घंटे बैठे रहे, एक कदम आगे नहीं थे जा सकते, वो ऊपर से पत्थर भी फेंक देते थे। तो ये उसका हाल था उस टाइम के ऊपर कारगिल वॉर का। एंड उसके बाद फिर हमने वहां पर उस एरिया में काफी इम्प्रूवमेंट की, एक पूरा डिवीजन वहां लेके चले गए और एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने कुछ पॉइंट्स दिए थे, उसमें से अनफॉर्चुनेटली काफी सारे पॉइंट अभी तक भी पूरे नहीं हुए हैं। तो बेसिकली इंडिया को अभी उसके बाद अभी गलवान में भी देखो इतना बड़ा प्रॉब्लम पड़ गया, लद्दाख में। तो इंडिया को ये सोचना बहुत जरूरी है कि वी आर सराउंडेड बाय वेरी ट्रेचरस एनिमीज और हमारे पास कोई तरीका नहीं है इसके अलावा कि हम अपने आप को मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। और एनसीसी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बढ़ावा देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारे पास डोरमेंट सोल्जर्स भी हों जो जिनको की पूरी तरह से हमने ट्रेन किया हो, जिस तरीके से इजराइल ने अपने बंदों को ट्रेन करके रखा हुआ है। और मैं पहले भी ये बहुत बार कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि जिस गति से हमारा डिफेंस का जो प्रिपेयर्डनेस चल रही है, वो अनफॉर्चुनेटली मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो हिस्सा हूं नहीं, पर कांग्रेस के टाइम पर मैं फौज में ही था, तो कांग्रेस के टाइम पर बहुत स्लो थी। अभी कुछ उसने पेस पकड़ा है, पर जैसे ही कोई कुछ करने की कोशिश करता है तो ओपोजिशन बोलना शुरू कर देती है। अपने जवानों के ऊपर किसी को कोई फेथ नहीं है कि वो अच्छा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो अपनी जान दे देते हैं और लोग उनको क्वेश्चन करते रहते हैं। So ये सब चीजें हैं, ये दे शो अ लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक थॉट इन अ नेशन, अ लैक ऑफ अ स्ट्रेटेजिक कल्चर इन अ नेशन, और इनके ऊपर हमें दबाना चाहिए। और जिस तरीके से भुट्टो ने एक बार कहा था कि हम घास खा लेंगे पर हम अपना न्यूक्लियर वेपन जरूर बनाएंगे, मैं ये कहता हूं कि हमें भी अभी ये कहना चाहिए, चलो घास खाने की तो हमें जरूरत नहीं है, पर हम अपना पनीर खाना बंद कर देंगे, पर हम अपनी फौज को वो देंगे जो फौज को चाहिए ऐसे ट्रेचरस एनिमीज के साथ लड़ने के लिए। सो कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद भी जो कुछ हमारी वेपन्स की और हमारी जरूरत है
उसको पूरा करना है। और साथ में मेरे को लगता है कि स्पेशली पंजाब में इस टाइम के ऊपर हमारे बच्चों को मोटिवेट करना फौज में जाने के लिए बहुत जरूरी हो गया है। हमारी जो एज थी, हमारा जो टाइम था, आप अंदाजा लगाइए कि मैं जिस फैमिली से आता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर भी फौज में थे, मेरे फादर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी, मैं फौज में रहा 30-40 साल, इकलौता भाई था 5 बहनों का, फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे को फौज में भेज दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा वैसे। तो अभी हमारे पंजाब में बच्चे जो हैं वो हमारे घर में मतलब मेरे 5 सिस्टर्स में से 4 सिस्टर्स फौज में शादी हुई थी, मेरी वाइफ भी जो है वो एक ऑफिसर की बेटी है। तो इस तरीके से इतना बड़ा माहौल था पंजाब में फौज में जाने का, और हम इसको इतनी बड़ी चीज समझते थे। आजकल सबका आंखें पड़ गई हैं कि हम यहाँ कनाडा चले जाएं या यूएस चले जाएं, मेरे बच्चे भी चले गए हैं, उन्होंने भी फौज छोड़ दी, तो मैं दूसरे किसी को क्या कहूँ। पर वहाँ कोई ऐसी लाइफ अच्छी नहीं है अब्रॉड, मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ। और फौज की जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी है। सब चाहते हैं कि वो अफसर बने, सब अफसर नहीं बन सकते हैं, और अफसर बन के कुछ खास इतना बड़ा नहीं मिल जाता है जो कि दूसरों को, जेसीओज और जवान्स को नहीं मिलता है। उनकी भी बहुत अच्छी जिंदगी होती है। मेरे साथ जो जेसीओज हैं, उन्होंने बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े, कई आजकल तो सारे जेसीओज के बच्चे अफसर बन रहे हैं। 4 जेसीओज के बच्चे जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं। तो ये कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ दिमागी फर्क है। तो मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने ये एनसीसी ज्वाइन की है। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को बढ़ा के फौज में भी जाएं। अपना जो हमारा ये ट्रेडिशन है, आर्मी की ट्रेडिशन है हमारे पंजाब की, उसको हमें बरकरार रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यही कहते हुए मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूं, और किसी के कोई सवाल हैं कारगिल के बारे में या किसी और चीज के बारे में, आई विल बी वेरी प्लीज्ड टू टेक देम। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for sharing your valuable views on the Kargil war. Salute to the Kargil warriors, and we are highly motivated to join defense forces. Now, if any participant has any question or query related to today's topic, then they can share in the chat box. And I invite Dr. Manjeet Singh for this question and answer session. Thank you, Simran Kaur. Thank you, sir. Thank you very much, sir. चैट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे पास सवाल हैं। सर, सबसे पहला सवाल है गुलाब सिंह का। वो सर ये पूछना चाह रहा है कि जो कारगिल वॉर है वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑपरेशन था या कारगिल वॉर था? सर, इट वाज अ फुल फ्लेज वॉर। इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट अ लिमिटेड वॉर, बिकॉज वो वॉर जो है वो एक ही सेक्टर में लिमिटेड थी, बट इट वाज अ फुल फ्लेज वॉर। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से भी जो एनिमी है वो मर्सिनरीज नहीं थे, वो रेगुलर पाकिस्तान आर्मी के लोग थे। उन्होंने इन्फिल्ट्रेट नहीं था किया, उन्होंने इंट्रूड किया था, और हमारा जो एरिया है उस एरिया को उन्होंने फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया था, ट्रेचरसली ऑक्यूपाई किया था। तो जब भी आपके एरिया में कोई अंदर आ जाता है और आप उसको बाहर निकालते हो, इट बिकम्स अ वॉर। ये बात आप समझिए। देखो, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका शिमला एग्रीमेंट से प्रोटोकॉल है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान करेगा ना हिंदुस्तान करेगा। अभी जो लोग अंदर आते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं फ्रॉम कश्मीर और फ्रॉम JNK, तो पाकिस्तान कहता है कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये तो टेररिस्ट हैं, और हम भी टेररिस्ट से, वी आर आल्सो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। बकवासबाजी है पाकिस्तान की, बट दिस इज द थ्योरी दैट पाकिस्तान गिव्स फॉर इन्फिल्ट्रेशन। तो जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमारे पास, वो टेररिस्ट हम उनको मानते हैं। तो जो हम उनके अगेंस्ट जो हम ऑपरेशन करते हैं उसको हम बुलाते हैं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। पर ये कोई काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं था, ये कोई टेररिस्ट नहीं थे इन्फिल्ट्रेट किए, ये उनकी रेगुलर आर्मी थी। और उसने हमारे एरिया के ऊपर, टेररिस्ट जो है वो किसी एरिया को होल्ड नहीं करते हैं, उस रेगुलर आर्मी ने हमारे एरिया को होल्ड कर रखा था एट अ फ्रंटेज ऑफ 150 किलोमीटर्स।
सिमिलरली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी अगर हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो एक क्लैश नहीं होगा, अगर आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वो फुल फ्लेज वॉर होगी, और हो सकता है वो लोकलाइज हो सकता है बढ़ जाए। ओके, थैंक यू सर। सर इसी में ऐड किया है क्वेश्चन आकृति ने कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया है, वॉर के रूप में उन्होंने डिक्लेयर किया ऑफिशियली या फिर उन्होंने इसको मिलिटेंसी ऑपरेशन बताया है? सर पाकिस्तान तो कंफ्यूजन में ही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नवाज शरीफ से बात की थी कि भाई ये क्या हो रहा है, एक तरफ से तेरे साथ मेरी बस डिप्लोमेसी चल रही है, ऊपर से तुम्हारे यहाँ तुमने इंट्रूजन कर दी है, तो नवाज शरीफ ने कह दिया था कि भाई मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं कि कोई इंट्रूजन हुई है, मेरे को नहीं पता वहां कौन लोग बैठे हुए हैं। तो इसी कंफ्यूजन में ही रही उनकी तरफ से ये जो लड़ाई है। अब भी जाके उनकी कुछ किताबें आनी शुरू हुई हैं और अभी कुछ लोगों ने वहां बोलना शुरू किया है कि तो 10 साल जब तक परवेज मुशर्रफ को क्या कहते हैं डिक्टेटर, तो उसने तो कुछ लिखने नहीं दिया। तो अभी एक बहुत अच्छी वहां से किताब आई है, उसका नाम मेरे को लिखा है फ्रॉम कारगिल टू कू बाय नसीम जहरा। तो अभी जाके कहीं पाकिस्तान में ये क्लैरिटी आ रही है कि हुआ क्या था, उनका क्या उसमें लेना देना है। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि उनकी डिनायल तो इतनी थी कि उन्होंने अपनी डेड बॉडीज भी नहीं ली वहां से। सो कारगिल, पाकिस्तान नेवर एक्नॉलेज कारगिल एज अ इंट्रूजन। पाकिस्तान टिल नाउ दे हैव स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग। और यहाँ तक है कि जब गए थे नवाज शरीफ वेंट टू दिस प्लेस USA to meet the president over there, तो नवाज शरीफ ने वहां भी जाके उनको कह दिया, कहते कि भाई वहां तो कुछ हो नहीं रहा, पता नहीं इंडिया क्या कह रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आती है। और वहां पर प्रेसिडेंट ने उनको सैटेलाइट इमेजेस दिखा दिए थे, कहते ये देखिए हो रहा है, ये तेरे बंदे बैठे हैं और ऐसे मर रहे हैं वहां। उसके बाद फिर ये नवाज शरीफ ने जाके पकड़ा था उसको, परवेज मुशर्रफ को, और फिर ये बात हुई कि चलो सीज फायर करते हैं। पर जैसे मैंने बताया, जब तक सीज फायर हुई है वहां कोई नहीं था बचा। इंडियन आर्मी हैड टेकन ऑल द हाइट्स एंड ऑल द इंट्रूडर्स हैड बीन न्यूट्रलाइज्ड, मोस्ट ऑफ देम हैड बीन किल्ड, और बाकी कुछ वो वापस अपने लेके गए थे। क्या नाम है, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी लेके जाने की पर वहां जितने थे वो न्यूट्रलाइज हो गए, और उनका क्रिमेशन भी इंडियन आर्मी नहीं की। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पवन शर्मा जी का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। वो ये पूछना चाहते हैं कि जो LAC है, LOC है और इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं जी? अच्छा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो मैं छोटा सा बता देता हूं कि जो LAC है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जब ये लड़ाई हुई है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो चाइना ने ये मुसीबत खड़ी की हुई है वहां पर, चाइना का कोई हक ही नहीं बनता इस मुसीबत को खड़ा करने के लिए, क्योंकि इंडिया का चाइना के साथ कोई बॉर्डर ही नहीं है। इंडिया का बॉर्डर है उस एरिया में एक तो तिब्बत के साथ और दूसरा ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के साथ, और ये दोनों ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं चाइना की, लीगल सेंटिटी नहीं है इनको ऑक्यूपाई करने के लिए। तो मैं इनको बुलाता हूँ COT एंड COET, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत एंड चाइना ऑक्यूपाइड ईस्ट तुर्कमेनिस्तान। तो जब 1962 वॉर हुई है, चाइना ने कई एरियाज के ऊपर क्लेम किया। कैसे उसने क्लेम किया? इन द सेंस कि जब हमारी वहां पर 3-4 प्रोटोकॉल्स के साथ बाउंड्री ब्रिटिश ने बनाई थी, सिक्किम की तरफ मैकमोहन लाइन थी और इस तरफ थी जॉनसन आर्डग लाइन, उसके साथ जो हमने बाउंड्रीज फिक्स की हुई थी, चाइना ने उस बाउंड्रीज को कह दिया कि मैं इन बाउंड्रीज को मानता नहीं हूं, क्योंकि उनको एक्साइज चेन का एरिया चाहिए था, वहां से उन्होंने एक रोड निकालनी थी। तो उस वजह से 1962 वॉर हुई, जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, और उस एरिया में उन्होंने हमारे से 38,000 किलोमीटर की एरिया को कब्जा कर लिया, बेसिकली एक्साइज चेन में। तो जब उन्होंने कब्जा कर लिया, उनका काम बन गया, तो उनका जो चाओ एन लाई है, उसने एक चिट्ठी लिखी थी अपने जवाहरलाल नेहरू को, कहता जो हो गया सो हो गया, अभी जहां हम बैठे हुए हैं आप अपनी जगह बैठे रहो, मैं अपनी जगह बैठा रहता हूँ, इसके बीच में हम 20 किलोमीटर का एक बफर बना देते हैं और इसको बता देते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
और जब हमारी बाउंड्री डिस्प्यूट ठीक होगी तो उसके बाद हम अपने बॉर्डर्स को डिक्लेयर कर देंगे। वो दिन गया, आज का दिन गया, चाइना ने बाउंड्री डिस्प्यूट का कोई मतलब जितनी बार हमारी मीटिंग्स बैठी हैं, चाइना ने अपना मैप तक नहीं दिया आज तक कि वो उनके हिसाब से बाउंड्री क्या है, क्योंकि उनको ये सूट करता है। अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि हम सलामी स्लाइसिंग कर करके किसी तरह से लद्दाख को ले लें, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी भी वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने आपको बताया है कि 1947-48 की लड़ाई में जहां वो सीज फायर हुई थी, तो इसको पहले बुलाते होते थे सीज फायर लाइन, इसका नाम लाइन ऑफ कंट्रोल पड़ा सिमला एग्रीमेंट के बाद। सिमला एग्रीमेंट के टाइम के ऊपर हमारे पास ये मौका था कि हम सारे के सारे एरिया को ले लेते, इसको बॉर्डर में कर देते और उनसे ये भी मांग लेते कि गिलगित बाल्टिस्तान हमें दो, पर हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी क्यों नहीं किया मैं नहीं बता सकता हूँ। तो उस टाइम पर जो सीज फायर लाइन थी उसको लाइन ऑफ कंट्रोल में शिफ्ट कर दिया, और जो बॉर्डर है वो अखनूर के बाद बॉर्डर है, और उस बॉर्डर के ऊपर हमने डीसीबी बना रखी है। तो इसलिए हमारे पास इन दो कंट्रीज के साथ 3 किस्म के बाउंड्रीज हैं, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है राम शरण जी का। तो जैसे कारगिल वॉर के समय जो हमारी राजनीतिक निर्णय की जो भूमिका रही है वो क्या रही है भारत की तरफ से? कारगिल वॉर के समय राजनीतिक निर्णय की क्या भूमिका रही है? जैसे हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा है? और इसमें दूसरा क्वेश्चन ऐड किया कि पार्लियामेंट पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या प्रेशर रहा है कारगिल वॉर के समय या कारगिल वॉर के बाद? कारगिल वॉर के समय से। अच्छा, कारगिल वॉर के समय पर तो जैसा कि मैंने बताया है कि आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन एक्चुअली, कि हमने जो पॉलिसी बनाई थी वो ये थी कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करेंगे। ये हमने एक बड़ा राइटियस और एक राइटियस स्टैंड लिया था, जिसके कारण हमारे को काफी कैजुअलिटीज भी लेनी पड़ी, क्योंकि अगर हम उनके पीछे से जाके मारते उनको तो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर अस। पर क्रॉसिंग ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल बाय इंडिया वुड हैव मेंट कि वी आर हम अपनी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी चाहते थे कि हम अपने एग्रीमेंट को मत तोड़ें, हम ये कहें कि पाकिस्तान नहीं तोड़ा है। सो ये हमारा स्टैंड था दैट वी विल नॉट क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये दूसरा स्टैंड ये था कि हम इसको लिमिटेड रखेंगे, हम सिर्फ अपने एरिया से उनको निकालेंगे और हम उनके किसी भी एरिया के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ये दो हमारे प्रोटोकॉल थे उस टाइम के ऊपर, और इन्हीं दो प्रोटोकॉल से हमने वो उस लिमिटेड वॉर को खत्म किया, और इसका ही हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत सराहना मिली। वी गॉट अ वेरी गुड नेम एंड पाकिस्तान वाज डिसग्रेस्ड इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और हमारा जो पॉलिसी रही है वो यही रही है कि वी विल नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल टिल रिसेंटली 2004 के बाद, जबकि हमने 2 बार लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया है और पाकिस्तान को अंदर जाके मारा है। अभी हमारा पॉलिसी शिफ्ट आया हुआ है, और हमारा पॉलिसी शिफ्ट ये कहता है कि अगर वो हमारे पर ऊपर इस तरीके से अटैक करेंगे तो वी विल आल्सो अटैक देम इन देयर ओन एरिया। अब ये कितनी दूर तक जाता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर थोड़ा घबराया हुआ है, उसने दोबारा ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया। और चीन में भी देखो अभी किस तरीके से हम अल्टीमेट पॉलिसी बनाते हैं। अभी तक तो वेट एंड वॉच चल रहा है। मे बी वी माइट गो इन फॉर एन इंट्रूजन इन चीन आल्सो इन द अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आल्सो। थैंक यू सर। सर लास्ट क्वेश्चन है कैडेट तमन्ना का। वो ये जानना चाहते हैं कि कारगिल वॉर के दौरान जो सिविलियंस हैं, कारगिल में रहने वाले लोग, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? उन्होंने किस तरीके से इंडियन आर्मी की, इंटेलिजेंस की हेल्प की कारगिल वॉर को जीतने के लिए? जी सर। दे आर वेरी वेरी लॉयल पीपल। दे आर बहुत, कारगिल के जो शियाज हैं, कारगिल के शियाज ही नहीं, देखो कारगिल में जम्मू एंड कश्मीर में बहुत एथनिक डाइवर्सिटी है। देखो जम्मू कश्मीर प्लेन से शुरू होता है और जाके 18,000 फुट के ऊपर जाके खत्म होता है। इट इज सच अ ह्यूज स्टेट। तो वहां पर जम्मू कश्मीर में नीचे डोगरे हैं, सिख हैं, जैन बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, फिर गुज्जर हैं,
पहाड़ी हैं और आप कश्मीर के अंदर मुस्लिम हैं, वो शिया भी हैं और सुन्नी भी हैं। उसके बाद जब आप जोजिला क्रॉस करते हो तो वहां पर जो मुस्लिम है वो बेसिकली शिया है। कौन आ रहा है अंदर? एनीवे, तो वहां पर जो मुस्लिम है वो सारे शिया मुस्लिम हैं और उनके ऑपोजिट गिलगित बाल्टिस्तान वाले जो है वो भी शिया मुस्लिम हैं। पर हमारे और उसके ऊपर जाके ले में बुद्धिस्ट है, बेसिकली बुद्धिस्ट और मुस्लिम पॉपुलेशन का मिक्स है। तो जितने वहाँ लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लोग हैं वो बहुत नेशनलिस्ट हैं, बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट हैं। इनफैक्ट यूल बी सरप्राइज, कश्मीर में भी मैक्सिमम लोग जो है वो नेशनलिस्ट हैं। ये तो थोड़े ही लोग हैं, छोटे 2-3 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट, पर लद्दाख के लोग जो हैं वो बड़े नेशनलिस्ट हैं। इस टाइम पर भी लद्दाख और कारगिल के लोग, सो उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट था। देयर वाज कोई ऐसी डिसेंशन नहीं थी। इनफैक्ट जो वो इंट्रूजन हुई है वो वहां के लोकल 2 शेपर्ड्स ने बताई थी। और इस टाइम पर भी लद्दाख में जो चल रहा है चाइना के साथ, उसमें लद्दाख के लोगों का पूरा सपोर्ट है इंडियन आर्मी के पास। एंड कोई ऐसा नहीं कहता कि चाइना ठीक कर रहा है। और लद्दाख में तो आजकल एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसको कहते हैं लद्दाख स्काउट्स, जो कि वहां की लोकलाइज्ड यूनिट है, परमानेंट आर्मी की यूनिट है। उसकी रेजिमेंट्स, उसकी यूनिट्स जो है, रेजिमेंट है वो, उसकी यूनिट्स वहां डिप्लॉयड हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं। थैंक यू सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, आपके बहुत सारे सवाल हैं जिसमें बाकी के हम सवालों के जवाब आपको वाया ईमेल देंगे। Now I want to invite our worthy Vice Principal, Professor Nirmal Gupta ma'am, for vote of thanks. Professor Nirmal ma'am. Good morning to everyone. Our chief guest, Dr. Rajesh Gupta, respected Colonel Jaban Singh, NCC cadets, my dear colleagues and dear participants. I deem it a pleasant privilege to be called upon to propose a vote of thanks on behalf of ST College Barnala. But before I seize this opportunity to express my gratitude to all of you present here, I salute to the indomitable valor, grit, and sacrifice of all Kargil warriors. As we all know, during this COVID-19 and lockdown period, we are trying to be in touch with our students by organizing online activities on whatever occasion it is. Like, we celebrated the 400th birth anniversary of Shri Guru Tegh Bahadur Ji, and similarly, we have also organized a webinar on the Kargil Vijay Divas. So, the initiative taken by Dr. Manjeet Singh to organize webinar on this Kargil Vijay Divas to show solidarity with our brave soldiers is really commendable. As today's youth is future's responsible citizens, so they must be ready to fight against all odds, to offer supreme sacrifice, to uphold the honor, pride, and integrity of the nation. So, before now not taking much time, so I seize this opportunity to extend my gratitude to our most respectable Colonel Jaban Singh, who while delivering his talk has explained and defined very clearly in detail the area related to Kargil and the very cause of dispute and 1947 war between India and Pakistan, and how Pakistan is always trying to cross the LOC line to occupy area across this line. He also told us Kargil was a big treachery. It is due to Pervez Musharraf's ego and treachery that this war is still going on, and so many soldiers, they are still sacrificing their life on that line of control. So he also threw a light on what hardships our soldiers they face there, what cruel, intimate weather they face,
like sometimes lack of ration, lack of ammunition. But even then, our soldiers are an example of unyielding courage. He also tried to motivate us to join NCC, to join Defense Army, and I think Sir is very successful to create a sense of belongingness among our students. But I think a great need of the hour, as he has already mentioned, is to create this sense of belongingness among our leaders also. So I also acknowledge the contribution of our principal, Ma'am Dr. Rama Sharma, who herself being an NCC cadet is always stimulating us to do our best. She is always our strength. And a special thanks to Dr. Rajesh Gupta ji also for being here with us. I am especially grateful to all the NCC cadets for their gracious presence. And I am thankful to all the faculty members who have joined us from different places to pay their tribute to our great warriors of Kargil. So I convey my heartfelt thanks to our technical team who have participated directly or indirectly with their emotional as well as technical support. So thanks a lot. Now over to Dr. Manjeet. Thank you, ma'am. Dear participants, thank you very much to join us with a great and very informative lecture by Colonel Jaban Singh. And thank you very much to all of you again. Now, this special lecture is about to finish. And thank you very much, all of you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind. Jai Hind, sir. Jai Hind. Thank you very much. I'm leaving. It was a pleasure talking to all of you. Thank you. Bye. Thank you.